پتا. تو میں وہ چاہتا تھا کہ ایک چھوٹی سی پہلے 5 منٹ کی فلم ہو، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا، جو یہ بتائے کہ انہوں نے کتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں وہ انقلاب لے کے آئے، اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے ایک عظیم قوم بن گئے مسلمان، اور پھر وہ نیچے کیوں آئے. تو میں پہلے چاہوں گا کہ وہ فلم دیکھ لیں. اس سے پہلے میں اللہ کا خاصا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنی قوم سے اس بھرپور طریقے سے ہم 12 ربیع الاول کا خوشیاں بنائیں. میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک دور تھا کہ جب عرب قبائل چاروں اطراف سے بڑی عالمی طاقتوں اور تہذیبوں کے درمیان ہونے کے باوجود غیر اہم تھے، جہاں انسان کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی. عرب معاشرہ عدل و انصاف و اخلاقی اقدار سے کوسوں دور تھا. جہالت کا زمانہ تھا. غلاموں سے انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا تھا. بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. کوئی خاندانی نظام نہیں تھا. مختلف قبیلوں میں بٹے قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تاریکی کے اس دور میں وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، جن کی آمد ایسی پرنور روشنی تھی کہ جس کے آگے کفار مکہ کے ظلم و ستم اور ناانصافی ماند پڑ گئی. حق اور سچ ایسا کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہے بنا نہ رہ پائے. اس زوال پذیر معاشرے میں صدائے حق بلند کرنا آسان نہ تھا، اور جب حق کی آواز اٹھی تو مزاحمت بھی بھرپور ہوئی. مصائب بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی. مدینہ جو آپ کے استقبال کے لیے منتظر تھا. شہر مدینہ عدل و انصاف، بھائی چارہ، معاشرتی فلاح اور اخلاقی اقدار کی نئی تہذیب کا محور بنتا گیا، جہاں انسانیت جاگ اٹھی اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی. جہاں تعلیم عورتوں کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ٹھہری. ایک مثالی فلاحی ریاست جس میں اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق فراہم کیے گئے، جہاں مالک اور غلام کے درمیان فرق مٹا دیا گیا اور انسانیت کو شرف حاصل ہوا. وہیں رنگ و نسل کی تفریق مٹا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس نے اپنے کردار سے دنیا بدل کر رکھ ڈالی. میدان بدر میں صرف 313 پر مشتمل دستے نے ایک نئے عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت فاتح مکہ عام معافی کی روایت ڈال کر امن کا نیا رستہ دکھایا. یہ دنیا کا واحد انقلاب تھا جو انسان کی لاشوں پر نہیں بلکہ حسن کردار، ایمان اور سچائی کے اصولوں پر قائم ہوا. بے شک اسلام پیار، اخوت اور امن کا دین ہے، نہ کہ زور اور زبردستی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 10 سالوں میں ایک ایسا بڑا انقلاب لے کر آئے جس نے دنیا کی امامت کی، جس کے آگے 2 عالمی قوتیں رومن اور پرشین امپائر نے جذبہ ایمانی والے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. یہ ایک فکری اور نظریاتی انقلاب تھا جس کی بدولت مسلمانوں نے سیاسی، عسکری، معاشرتی اور معاشی قوت بن کر اقوام عالم میں علم و حکمت، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اپنی برتری کا سکہ جمایا. علم، تہذیب و تمدن صدیوں تک عروج پر رہی. پھر وقت نے کروٹ بدلی. تعلیمات نبی سے دوری اور اخلاقی پستی نے غلامی کو ہمارا مقدر بنا دیا. اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عملی طور پر آقائے دو جہاں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں اور عدل و انصاف، انسانیت، سچائی، دیانتداری اور نیک کردار سے طرز زندگی اپنائیں. اس لیے رحمت العالمین اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد اور کردار سب کو متحد کرنا اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے. دنیا کو اسلام کی اصل شکل
یونیورسٹی میں دنیا کے نامور اسکالرز اپنا کردار ادا کریں گے. اسکولز کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصاب کا مسلسل جائزہ لینا اور رہنمائی کرنا. میڈیا کے ذریعے معاشرے کی طرز زندگی میں مثبت تبدیلی لانا. فکری اور نظریاتی سوچ کو بیدار کرنا. اسلامی تاریخ اور تعلیمات پر مبنی فلموں، ٹیلی ویژن ڈراموں کے ذریعے آگہی. یونیورسٹیز میں تحقیق اور مباحثہ. حکومت کی رب العالمین اسکالرز کی مانیٹرنگ. میرٹ پر مبنی آن لائن سسٹم. اسپیشل پروجیکٹس اور صوفیہ کرام کی زندگیوں اور تعلیمات سے سیکھنا. نوجوانوں کو ایک متبادل راستہ بتانا جو صراط المستقیم ہے، جس کی بنیاد اور اساس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا. جی خواتین و حضرات، یہ جو چھوٹی سی فلم، اس میں ایک چیز آپ نے جو نوٹس کی ہوگی کہ 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں. 622 اور 10 سالوں کے اندر جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو 600 مسلمان ہوتے ہیں، صرف آدمی اور عورتیں. اور 10 سالوں میں وہ سارا عرب کا نقشہ بدل جاتا ہے. جو جتنی بھی 10 سالوں میں جنگیں ہوتی ہیں، جو ٹوٹل لوگ ان جنگوں میں مرتے ہیں وہ 14 سال. 150 مربع میل پہ چھا جاتے ہیں مسلمان، اور 600 سے 1.25 کروڑ پہ چلے جاتے ہیں، 1.25 لاکھ پہ چلے جاتے ہیں. سوری. اب کہنے کا میرا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہوا تھا یہ کوئی تلوار کی زور سے نہیں ہوا تھا. یہ ایک دنیا کا بڑا فکری انقلاب آیا تھا. سوچیں بدلی تھی، ذہن بدلے تھے. اور یہ جو ہمیں قرآن میں حکم دیا جاتا ہے، اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. یہ کیوں حکم کرتا ہے؟ یہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے. کیونکہ یہ جو انقلاب آیا تھا، یہ انقلاب ہمارے، اگر ہم ان اصولوں کے اوپر چل پڑے تو وہ مسلمانوں کو اٹھا دیتا ہے. کیونکہ یہ تاریخ میں یہ ایک ماڈل بنایا اور پھر اس کو کامیاب کیا. جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک ماڈل بنا اور وہ پھر ساری دنیا پہ پھیل گیا، ساری دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا. تو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بنیاد کیا تھی، وہ اصول کیا تھے جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی. اور یہ میں اپنے نوجوانوں کو، خاص طور پہ اس ملک کے نوجوانوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو اتھارٹی کے ہم نے فیصلہ کیا وہ بھی میں بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. لیکن یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں. جو 3 سال اقتدار میں رہا ہوں تو میں ہمیشہ حیران ہوتا رہا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو. لیکن جو راستہ ہے وہ ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے. اور میں اب سے نہیں 25 سال پہلے جب میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو ہم نے اپنا ویژن اپنی دیا تھا کہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست.
मतलब कि मदीना की रियासत। ये 25 साल पहले हमारी विजन थी। हमारा नस्बुल ऐन था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और मैं तब भी इस नतीजे पे पहुंच गया था कि अगर इस कौम ने एक अजीम कौम बनना है तो इसको वो असूलों पे जाना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने वो क्या असूल थे कि वही लोग, वही अरब थे। वो आपने शुरू में नक्शा देखा, एक तरफ आधी दुनिया पर्शियन एम्पायर, आधी दुनिया रोमन एम्पायर, थोड़े से अरब थे बीच में, आपस में कबीले थे, लड़ते थे। तो वो क्या हुआ कि 622 से लेके 632 तक वो क्या हुआ कि वो दो लोग दुनिया की इमामत करने शुरू कर दिया। और अगले 20 सालों के अंदर वो मोरक्को से लेके तो हिंदुस्तान तक पहुंच गए, सेंट्रल एशिया तक पहुंच गए। वो क्या चीज थी? और ये है, अगर हम ये समझ जाए, ये है जिससे इंशाअल्लाह हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा। असूल क्या थे? तो मैं आपके सामने असूल रखता हूं, और मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं। इंशाअल्लाह ये जो हमारी अथॉरिटी बनेगी, इसमें हम अभी से बड़े बड़े इंटरनेशनल और पाकिस्तानी स्कॉलर्स को जमा कर रहे हैं, और उनका काम है कि ये लोगों तक लेके जाए। लेकिन मैंने अपनी जो तहकीकात की, मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, इखलाकी मियार उठाया एक माशरे का। उन्होंने मोरालिटी माशरे की उठाई, जो, और मोरालिटी बेस्ड ये है कि अच्छे और बुरे की तमीज हो। और जो मोरालिटी उठाई उस माशरे की, वो बड़ी देर तक मुसलमानों को दुनिया के अंदर, जब मुसलमान देखते थे तो लोग उनको समझते थे कि ये वो ईमानदार, सदाकत, सच्चे लोग, अमानतदार लोग हैं। आप हैरान होंगे कि जब आप अकाउंट्स पढ़ें, जब क्रूसेड्स का पहला, यूरोपियंस का पहला टाकरा हुआ अरबों के साथ, तो वो सारी राइटिंग्स में पढ़ें कि वो मुसलमान उनको समझते थे कि बिल्कुल वहशी हैं, जंगली हैं। और वो जब देखते थे सलाउद्दीन अय्यूबी के ऊपर, जब बाहर से आप किताबें पढ़ें, तो उनके बड़ा कैरेक्टर बड़ा ऊपर था, मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंची थी उनकी। तो सबसे पहले अपनी उन्होंने पर्सनालिटी से माशरे की अखलाकियात उठा दी। और जो अगली चीज उन्होंने की, इंसाफ का निजाम, अदल और इंसाफ, रूल ऑफ लॉ। उनकी 2 हदीस हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट हदीसें हैं, उन्हीं पे अगर एक माशरा अमल कर ले, उन 2 हदीस से माशरा उठ सकता है। कि एक, कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। और दूसरी चीज कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून था, रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक वो कौम दे सकती है जिसकी अखलाकियात ऊपर हो, जिसकी मॉरल स्टैंडर्ड्स हो, मोरालिटी हो जिसपे। हर कोई कानून की, रूल ऑफ लॉ नहीं, कानून की बालादस्ती नहीं कायम कर सकता। आज आप दुनिया में देख लें, दुनिया बटी हुई है। गरीब मुल्क कौन है? बनाना रिपब्लिक्स किसको कहते हैं? जिधर कानून नहीं है, जिधर इंसाफ नहीं है। और इंसाफ का मतलब ही होता है, कमजोर को इंसाफ चाहिए होता है। ताकतवर हमेशा कोशिश करता है अपने आप को ऊपर रखने की, और कमजोर, जब एक माशरा उसको इंसाफ देता है तो वो फिर उस माशरे का हिस्सा और उसको ओन करता है, वो स्टेक होल्डर बन जाता है। इसलिए जो भी मुल्क आगे बढ़े हैं दुनिया में, तो ये जो 2, एक मोरालिटी उनकी होती है, एक उनके पास का इंसाफ होता है। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमारी जो स्ट्रगल है इस पाकिस्तान में, वो कानून की बालादस्ती की है। ये एक बेसिक चीज है। जबकि एक माशरा, जब रोमन्स भी थे तो वो रोमन्स अपने आप को दूसरों को बार्बेरियंस कहते थे। वो बार्बेरियंस क्यों कहते थे? क्योंकि रोमन लॉ था, उनके कोई कवानीन थे, बाकियों को कोई कानून नहीं था। माइट इज राइट। बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। वह ताकत का जोर होता है, जंगल का कानून होता है। तो इसलिए ये जो मदीना की रियासत के बेसिस क्या थे? मोरालिटी और फिर
कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। तीसरी चीज, फलाही रियासत। दुनिया की तारीख में पहली दफा एक इंसानियत का निजाम आया। उन्होंने एक रियासत बनाई जिधर रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोर तबके की। ये पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी दुनिया में, और ये स्टेट ने इंसानों को फिर निचले तबके के ऊपर उठा दिया। जब एक रियासत लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करती है तो वो लोग भी जुड़ जाते हैं स्टेट के साथ। ये जो इंसाफ और ये जो इंसानियत है, इसकी वजह से एक कौम मजबूत हो जाती है। लोग ओन करते हैं उस कौम को। आप अगर बरसगीर की तारीख पढ़ें तो जब भी फौजें ऊपर से आती थी तो वो सीधी वहां पानीपत की जंग होती थी और जो जीत गया उसका हिंदुस्तान। क्योंकि फ्यूडल सिस्टम था यहां कानून की हुक्मरानी नहीं थी, ताकत की हुक्मरानी थी। फ्यूडल सिस्टम का मतलब कि जो ऊपर बैठा होता है वो कानून से ऊपर होता है। लेकिन अफगानिस्तान जो है और जो हमारा कबायली इलाका, इसके अंदर एक जूरी सिस्टम था जिसको जरगा कहते हैं। लोगों को इंसाफ मिलता था। तो ये आप देख लें कि सारा ये इलाका, अंग्रेज हुए, रूसी हुए, फिर अमेरिकी हुए, जो बरतानिया में जब फतह किया हुआ था पूरा हिंदुस्तान, ये जो कबायली इलाका था ये मुसलसल लड़ता रहा उनके खिलाफ। वो क्यों लड़े? क्योंकि वो आजाद, इंसाफ ने उनको आजाद कर दिया था। और आजाद लोग वो ही लड़ते हैं अपनी आजादी के लिए। अगर मेरे पास आजादी नहीं है, अगर फ्यूडल सिस्टम है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई बाहर से आके ऊपर हुकूमत कर ले। इसलिए हिंदुस्तान को फतह करना आसान था, इसलिए अफगानिस्तान मुश्किल है फतह करना। वो फतह कर लेते हैं, उसके बाद फिर कौम खड़ी होनी शुरू हो जाती है आजादी के लिए अपनी। तो ये जो मदीना की रियासत में उन्होंने इंसाफ दिया और फिर लोगों की बुनियादी हकूक दिए, उनकी जो बुनियादी जरूरियात स्टेट ने पूरी की। और तीसरी चीज, उसमें मेरिट आ गई। आप अगर इस्लाम में ये जो पिछली तारीख है, ये जो एकदम सारी दुनिया में छा गए, उसमें बहुत बड़ी वजह मेरिट थी। जो भी अच्छा परफॉर्म करता था, जो जनरल, वो ऊपर आ जाता था। कोई किसी का ये राइट नहीं था कि हमें सिर्फ बड़ा ओहदा मिल रहा है। हजरत बिलाल एक गुलाम थे। हजरत बिलाल का ओहदा फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके थे, 2 एक्सपीडिशंस लीड की थी। सलमान फारसी था, एकदम मुसलमान हुआ, उसमें सलाहियत थी, वो ऊपर चला गया। तो जो भी उनके उम्मत में ज्वाइन करता था, अगर उसके अंदर सलाहियत थी, वो ऊपर चला जाता था। तो मेरिट का सिस्टम था। फिर उन्होंने लीडर्स प्रोड्यूस किए। जब आप ये जो दौर है, मैंने जो छोटी सी फिल्म में एकदम फैल गए, तो आप साथ साथ ये देखेंगे कि एक के बाद दूसरा लीडर निकलता गया। जो उनके इर्द गिर्द था वो लीडर बन गया। सारे सहाबा लीडर बन गए, क्योंकि उन्होंने जो उनके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग की। अच्छा, वो क्या सलाहियत थी, वो लीडर बन गए। लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले सादिक और अमीन। कभी भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती जो एक ईमानदार ना हो, सच्चा ना हो और अमानतदार ना हो, इंसाफ ना कर सके। किसी फील्ड के अंदर क्रिकेट कैप्टन की भी रिस्पेक्ट नहीं होती। कोई अगर इदारा चला रहा है, रिस्पेक्ट तब होती है जब ये सादिक और अमीन। और फिर लोगों के खौफ, जो खौफ है, ये कभी बुज़दिल इंसान लीडर नहीं बन सकता। उन सब के खौफ खत्म कर दिए। जो उनके करीब था, एक से एक बड़ा वो दलेर लीडर बन गया। तो खौफ कैसे खत्म किए? क्योंकि 3 चीजों से इंसान खौफ खाता है, मरने से, जिल्लत से और रिस्क जाने से कि मेरी रोजी ना चली जाए। तो ये कुरान के अंदर अल्लाह ने इन तीनों चीजें कहा कि ये मेरे हाथ में है। तो जब अल्लाह के हाथ में जिंदगी है, जब इज्जत भी उसके हाथ में है, जब रिस्क भी उसके हाथ में है, लोगों के खौफ चले गए।
تو وہ ایک ایسے لوگ بن گئے جو کہ لیڈرز بن گئے. اور اتنے چھوٹے ٹائم میں, اور انشاءاللہ یہ ہماری اتھارٹی اس پہ ریسرچ کر کے سامنے لے کے آئے گی کہ کتنے زیادہ لیڈرز اتنے تھوڑے وقت میں بنے. ایک لیڈر نہیں تھا, ایک ہیرو نہیں تھا, ہیروز ہی نکلتے گئے. سب انسان چھوٹے سے, جو مولانا رومی کہتا ہے نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چونٹیوں کی طرح کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو. اقبال کے شاہین بن گئے, زنجیریں توڑ دی انہوں نے جنہوں نے روکا ہوا تھا انسان کو, جو اس کا پوٹینشیل ہے, اشرف المخلوقات, اللہ کی سب سے عظیم مخلوق. آزاد ہو گئے لوگ, چھوٹے لوگ بڑے لوگ بن گئے, دنیا میں وہ پھیل گئے. اچھا, پہلے ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ سارے لیڈرز بنے, ان کو جو دیکھے نیچے وہ لیڈرز بن گئے. تو سارے مسلمان ملکوں کے اندر جو مسلمان جب پھیلے دنیا میں, تو اس میں سب سے بڑی کوالٹی لیڈرشپ تھی. پھر انہوں نے معاشرے میں کیا کیا؟ خواتین, اس سے پہلے عورتیں پراپرٹیز ہوتی تھی آدمی کی, انہوں نے پہلی دفعہ عورتوں کو پراپرٹیز میں رائٹس دے دیے, حقوق دے دیے. وہ حقوق جو یورپ میں کئی سو سال بعد آئے, اس وقت انہوں نے عورتوں کو حقوق دے کے معاشرے کے اندر, انہوں نے آخری خطبے میں کہا کہ عورت پہ بھی اتنے حقوق ہیں جو آدمی پہ ہیں اور آدمی پہ عورت پہ ہیں. پھر غلاموں کو انہوں نے جس طرح انہوں نے سٹیپس پہ غلاموں کو معاشرے کا حصہ بنایا, اس پہ کسی اور قوم کی یہ تاریخ میں یہ نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے ایسی. یعنی انہوں نے جب کہا کہ اس کو اپنے فیملی ممبر کی طرح رکھو ایک غلام کو, تو وہ جو ان کے کہنے پہ, اور جو حضرت بلال کا جو مثال دی, مسلمان دنیا میں کئی صدیوں تک مسلم سلیو ڈائنسٹیز آئیں. یہاں قطب الدین ایبک ایک غلام تھا جو کہ بادشاہ بن گیا. مملوک تھے مصر کے اندر جو غلام تھے, اور غلام سے ان کی ڈائنسٹی بن گئی, انہوں نے کئی سو سال حکومت کی وہاں. اور پھر جو مقام تھا, پھر جو عثمانیہ سلطنت تھی, جانصاری ان کی ایلیٹ فورس تھی, وہ ساری غلاموں کو انہوں نے اوپر لا کے ٹریننگ دے کے ان کو اوپر بٹھا دیا, سب سے ایلیٹ ان کی فائٹنگ فورس تھی. تو غلام کا مرتبہ ہی چینج کر دیا, ان کو انسان کی طرح رکھا, فیملی ممبرز کی طرح رکھا. یہ بہت بڑی اس سے نہ پہلے کبھی اس طرح ہوا تھا. اور اب آ کے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم مغرب میں دیکھتے ہیں تو وہ جس طرح کے اپنے نوکروں کو رکھتے ہیں اور ہم رکھتے ہیں, وہ مجھے کئی دفعہ بہت شرم آتی ہے. پھر بوڑھوں کی عزت, پہلی دفعہ پینشنز مدینہ کی ریاست میں شروع کی گئی تھی کہ بوڑھوں کی ذمہ داری لی ریاست نے, کمزوروں کی, بوڑھوں کی, بیواؤں کی, یتیموں کی. یہ ایک انسانیت کا نظام کھڑا کیا. تو جب آپ دیکھیں دنیا میں اپنی تاریخ دیکھیں تو کون تھے وہ جو ہماری ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں, جتنے بڑے بڑے صوفی تھے یہ سب عاشق رسول تھے. جتنے بڑے نام تھے ہمارے بابا فرید گنج شکر, داتا صاحب, نظام الدین اولیاء, یہ سارے بڑے, محی الدین چشتی, یہ بڑے بڑے صوفی, یہ سارے عاشق رسول تھے. اور عاشق رسول ہوتے ہوئے ان کے قدموں پہ چل پے, ان کے کتنا مقام بن گیا. آج بھی ان کے مزاروں کے اوپر لاکھوں لوگ آتے ہیں, ان کو پیار کرتے ہیں, آج بھی ان سے کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے قدموں پہ چلے گا, جو بھی چلا وہ اوپر آ گیا. اچھا, اب جو اور پھر انہوں نے کہا چائنا بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ, جب سے پیدا ہوتے ہو جب تک قبر میں جاؤ علم حاصل کرو. اور اس کی وجہ سے جو پھر ایک انقلاب آیا, علم کا انقلاب آیا, مسلمان سائنٹسٹ بنے ٹاپ ہر چیز کے اندر. ایک جو بغداد سینٹر بن گیا دنیا کی لرننگ کا, وہ جو بیت الحکمہ تھا, ہاؤس آف وزڈم, ساری دنیا سے کتابیں لائی, ٹرانسلیٹ کی, نالج سینٹر بن گیا. ایسی مسلمان دنیا میں, کورڈوبا میں
मुस्लिम स्पेन में एक लाइब्रेरी थी जिसमें सारी यूरोप से ज्यादा किताबें थी। तो सेंटर ऑफ लर्निंग बन गए मुसलमान। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं वो ये कि देखिए, हम गलती करते हैं कई दफा। हम कहते हैं हमारे पैगंबर रहमतुल आलमीन, अल्लाह ने उनको खिताब दिया था, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो इंसान उनकी सुन्नत पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझने के लिए बात है, क्योंकि इसमें इकबाल ने बड़ा जबरदस्त शिकवा और जवाब शिकवा लिखा था। मकसद ये एक दफा शिकवा के देखें हम किधर थे और हम किधर पहुंच गए हैं। तो जो इकबाल ने जवाब शिकवा में लिखा था कि जिन चीजों की वजह से हम ऊपर आए थे, जब हम उनसे नीचे गए तो हम नीचे आ गए। और जो मुल्क जिनको हम काफिर समझते हैं, जब वो उनकी सुन्नत के ऊपर चलना शुरू करेंगे, वही असूल जो मदीना के हैं, जो कैरेक्टर के, वो ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि रहमतुल आलमीन है। जो उनके कदमों पे चलेगा वो ऊपर आ जाएगा। और इसमें बड़ी अब आज की जरा मैं मिसालें देना चाहता हूं कि देखें, जो हम मुल्क जिनको कहते हैं कि वो इस मुसलमान नहीं है, जरा मैं सिर्फ आपको मिसालें देना चाहता हूं अपनी जिंदगी से। मैं पहली दफा जब बरतानिया गया तो मैं हैरान हो गया वहां देख के। मुझे तो हमें तो पता ही नहीं था फलाई रियासत क्या होती है। उस रियासत के अंदर पहली दफा हमने देखा कि इंसानियत क्या होती है। गरीब आदमी के लिए मुफ्त इलाज, गरीब आदमी के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और बेहतरीन तालीम। अगर वो गरीब आदमी बेरोजगार होता तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, स्टेट उसका ध्यान रखती है। अदालत में जाता है और उसके पास पैसे नहीं है तो लीगल एड मिलती है उसको। ये मैंने पहली दफा चीजें देखी वहां जाके। और रूल ऑफ लॉ यानी कानून। मैं आपको अपना बताऊं कि मेरा एक वहां केस था इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड का बहुत बड़ा स्टार था इयान बोथम। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि क्या फर्क क्या है और क्यों वो आगे निकले, क्यों हम पीछे हैं और कैसे हम आगे निकल सकते हैं। मेरा केस था, वो भी इंग्लैंड का बड़ा नाम था, मेरा उससे क्रिकेट में बड़ा मुकाबला होता था। तो उसने मेरे ऊपर अदालत में केस कर दिया। उसने भी सबसे बड़ा वकील लिया, मैंने भी इंग्लैंड का सबसे बड़ा वकील लिया। तो मुझे याद है, मैं जब मेरी उससे पहली बात हुई और वो मेरे से पूछ रहा था, मेरे एविडेंस ले रहा था, तो उसने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि अगर मैं ये आपको वार्न करना चाहता हूं कि इसमें एक भी चीज जो आप लिख रहे हैं झूठ निकली, वो जज सीधा आपको वो पर्जरी के अंदर जेल में डाल देगा। और फिर उसने कहा कि मैं आपको कोच नहीं कर सकता। मैं तो कभी अदालत में गया ही नहीं था। उसने कहा मुझे इजाजत नहीं है कोच करने की। यानी मैं उसे पैसे भी दे रहा हूं, वो ये भी नहीं मुझे बता रहा कि अंदर मैंने अदालत में करना क्या है। उसने कहा तुमने सिर्फ सच बोलना जाके। और फिर मैं थोड़ी देर हमारे उसके बाद एक बहुत बड़ा बरतानिया का एक नाम था लॉर्ड जेफरी आर्चर। वो पाकिस्तानी का एक अजीज कुर्ता था पाकिस्तानी, उसका एक बड़ा केस हुआ वहां। वो पाकिस्तानी केस हार जाता है। 3 महीने के बाद पता चलता है कि वो जो लॉर्ड जेफरी आर्चर ने एक जो गवाह लेके आया था, उसने झूठ बोल दिया। 3 महीने के बाद वो जेफरी आर्चर लॉर्ड, जो इतना ताकतवर आदमी था बरतानिया में, उसको 3 साल की जेल हो गई पर्जरी के ऊपर, सिर्फ झूठ बोलने पे। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं पैनामा केस में, मेरे साथ और भी मेरे लोग बैठे जो अदालत में थे। अब मैं आपको क्या बताऊं कि किस तरह के वहां झूठ बोले गए। कतरी खत आ गया। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इंग्लैंड के अंदर अगर कतरी खत आ जाता, सीधा ही अगर वो खत आ जाता तो उसी वक्त केस रुकना था और उसे जेल में डाल देना था उसे। फिर जी क्लिबरी फॉन्ट आ गई। वो क्लिबरी फॉन्ट 2007 में आती है, वो 2006 में कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं, अभी वो फॉन्ट आई नहीं होती। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये ओथ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है। जिस तरह झूठी गवाहियां होती हैं यहां,
यानी वहां का अदालती निजाम और यहां का जमीन आसमान का फर्क है। और मैं तब समझा कि आपके पास मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए इंसाफ करने के लिए। अगर आपके पास मॉरल अथॉरिटी, आप इंसाफ नहीं कर सकते। किसी की जरूरत नहीं है वहां उधर का पार्लियामेंट्री निजाम। अब पार्लियामेंट्री निजाम जो है हमने भी उन्हीं का अपनाया हुआ है, हमारा वेस्टमिंस्टर मॉडल है। अब वहां का पार्लियामेंट, क्योंकि मेरी 20 साल गुजरे वहां, तो वहां का जो पार्लियामेंट्री निजाम है जिसके ऊपर उनकी सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है, वो है ही अगर आपके पास इखलाकियत, अगर आपके पास इखलाकियत का मेयार है तो वो डेमोक्रेसी कामयाब हो सकती है, नहीं तो वो नहीं चलती। और इसीलिए बर्तानिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चली नहीं है सिवाय बर्तानिया के और एंग्लो सैक्सन मुल्क में, कनाडा में चल गई, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अलावा सारी जगह पे वो बंदरबांट बन जाती है। क्योंकि उसके लिए एक बड़ा आपको मॉरल स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं उस डेमोक्रेसी के लिए। वहां कभी कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि जनाब वोट बिकेगा। वहां कोई छांगा मांगा जैसी और वो जो बंद करके या मरी में बंद करके भेड़ बकरियों की तरह कभी लोग नीलाम नहीं होते। उधर कोई सोच नहीं सकता। ये सबको पता है सेनेट के अंदर इलेक्शन में पैसा चलता है, वहां कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। ये वहां अगर किसी के ऊपर कन्विक्शन हो जाए या चले उसके ऊपर इल्जाम लग जाए कि उसने पब्लिक के पैसे की चोरी की है, वो पार्लियामेंट तो छोड़े, वो किसी मीडिया में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। तो देखिए, ये मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन वो जब आज जो हमारा सारा प्रोग्राम और आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनकी तरफ पहले सुन्नत सीखे तो सही। जो अल्लाह ने वादा किया है कि जो उनकी सुन्नत पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए तो वो रोल मॉडल हैं। मैंने अपनी जरा डेमोक्रेसी देखता हूं, अपनी जो अखलाकियात वो देखता हूं, और मैं ये समझता हूं कि ये हमारी सबसे बड़ी जंग है इस मुल्क की। जब तक हम अपने मुल्क के अंदर ये कानून की बालादस्ती कायम नहीं करते, जब तक हम ये जंग नहीं जीतते, ना या मुल्क में सही जमहूरियत आने लगी है, ना या मुल्क में खुशहाली आने लगी है। आप जो हमारा सबसे बड़ा असास है, क्योंकि मैं पहली 18 साल का गया था जब बाहर, तो मेरा सबसे ज्यादा वास्ता ओवरसीज पाकिस्तानी से। ये जो भी नजम शिराज आया था, ये भी बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है। सबसे ज्यादा मेरा उनसे वास्ता है, क्योंकि मैं पहले क्रिकेट की वजह से इन सबको मेरी मुलाकात रहती थी इनसे, और उसके बाद जब मैं शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे किए, बड़े पैसे इकट्ठे कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा मदद मेरी ओवरसीज पाकिस्तानी ने की। तो मेरा इनसे राब्ता सबसे ज्यादा था। मैं हमेशा ये देखा, वो बेचारे मेहनत करते थे, पाकिस्तान में नौकरियां नहीं मिलती थी, या हमारा मेरिट का सिस्टम नहीं था, काबिल लोग होते थे, बाहर जाते थे, मेहनत करते थे, काम करते थे, लेकिन हमेशा ज़हन में होता था कि जब मैं पैसे बना लूं मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा। सारा वक्त वो ये सोचते थे कि एक दिन मैं पाकिस्तान वापस, जब मेरे पैसे आ जाएंगे मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। और वो फिर, क्योंकि मैं इतनी देर वहां उनसे 50 साल से, तो मैंने उनको देखी, उनकी सारी स्टेजेस देखी। वक्त आ गया, पैसे भी बना लिए, बच्चे कोई 12-13 साल 15 साल के हो गए, पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान में बिजनेस शुरू की, पहला फ्रॉड हुआ, दूसरा फ्रॉड हुआ, वापस बैंकरप्ट होकर वापस चले गए। बच्चे वो पाकिस्तान में एडजस्ट ना हो सके, तो वो तरसते ही रह जाते थे। हम जाते थे, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी बनी होती थी, पाकिस्तानी गाने सुनते थे, पाकिस्तानी की यादें आती थी, लेकिन पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ सकते थे? क्योंकि उनको आदत पड़ जाती थी एक बेहतर मोरालिटी की सोसाइटी में, एक कानून जिधर रूल ऑफ लॉ है, उसकी आदत पड़ जाती थी। उनको बिजनेस उधर करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन कामयाब जब होते थे तो वो उस सोसाइटी में होते थे जिधर वो, अगर आप मेहनत करते हैं आपको फल मिलता है। तो जब वो वापस आते थे इस सोसाइटी में, वो एडजस्ट नहीं हो सकते थे। अब सोचें 90 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे, अगर इनमें से सिर्फ 30-40 हजार ही पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर दें,
हमें कोई IMF की जरूरत ना पड़े, इतना उनके पास पैसा है। एक पाकिस्तानी मैं जानता हूं जिसके पास सिर्फ अकेले की दौलत इतनी है जितना हमारे IMF का कर्जा है, ऐसे जानता हूं मैं वहां। लेकिन उनसे पूछें कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते, वो पाकिस्तान का सिस्टम उनको पाकिस्तान नहीं आने देता, वो तरसते हैं पाकिस्तान आने के लिए। तो ये जो मोरालिटी, कानून की बालादस्ती, ये हमारे मुल्क के लिए, इसलिए अगर हमने खुशहाल होना है तो हमें जरूरत है इसकी। अपने मुल्क को जब तक जो पोटेंशियल आजाद करना है, तो तब तक ये नहीं होगा जब तक हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी इखलाकियात को नहीं ऊपर लेके जाएंगे। और ये अल्लाह ने जब रहमतुल आलमीन का खिताब दिया तो उन्होंने कहा कि जो उनके रास्ते पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। आप देख लें, आप बरतानिया के अंदर एक बड़ा जबरदस्त एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक इंसिडेंट है कि हिटलर की फौजें सारा यूरोप फतह कर लिया, उन्होंने सारा यूरोप फतह हो गया। अब वो इंतजार कर रही हैं बरतानिया में आने के लिए, सिर्फ रास्ते में समुंदर है, बमबारी हो रही है, ब्लिट्स हो रही है, एक बिल्डिंग नहीं खड़ी, लंदन की तबाह हो रही है बिल्डिंग। तो लोग खौफजदा होके उनके प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या हम बच जाएंगे, क्या हम कौम बच जाएगी? उसने आगे से जवाब दिया कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? वो दंग रह गए कि हम कह रहे हैं कि उसकी हिटलर की बमबारी हो रही है, तबाह कर रहा है, मुल्क है, वो कह रहा है आगे से कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं। असल में वो मतलब उसका ये था कि क्या हमारे में अभी तक वो इखलाकी म्यार है कि हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, कि उनमें कुव्वत है इंसाफ देने की? तो हुआ क्या, बरतानिया तो बच गया, जर्मनी भी शिकस्त खा गया, जापान भी शिकस्त खा गया। जर्मनी के अंदर एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी जब जंग खत्म हुई। जापान के ऊपर 2 एटम बॉम्ब गिर चुके थे। 10-10 सालों में दोनों कौमें खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि इखलाकियात को बमबारी से आप तबाह नहीं कर सकते। जो और दूसरी तरफ दूसरी तरफ आप देख लें, हमारी जिंदगी में बेरूत, सारे मिडिल ईस्ट का बेरूत को कहते थे पेरिस है मिडिल ईस्ट का। हमने अपनी जिंदगी में सारे यहां से भी सोचते थे जी बेरूत जाना है, वो इतनी जबरदस्त जगह। आज बेरूत और लेबनान फेल्ड स्टेट कहा जा रहा है। आज उनकी अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। क्या वजह है? वजह देखनी है तो वो जो लोग सड़कों पे निकले हुए वो क्या कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट करप्ट है। हमारी गवर्नमेंट करप्ट है, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, वो पैसे बना रहा है, उसको उनका कानून का निजाम नहीं पकड़ सकता। और वही मुल्क जो सबसे खुशहाल इलाका था, जिसकी सारी मिडल ईस्ट से लोग छुट्टियां मनाने जाते थे, वो आज एक फेल्ड स्टेट बना हुआ है। सारी, जिस तरह मैं फिर से, जो बनाना रिपब्लिक होती है वो वसाइल की कमी से नहीं होती। एक गरीब कौम वो इसलिए होती है वहां कानून नहीं होता, इंसाफ नहीं होता। जो ये फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है, और ये मैं फिर से बार बार दोहराता हूं, ये जरूर समझ लें, ये हमारे लिए ये गौर करने की, गौर और फिक्र करने की है। ये फैक्ट आई पैनल यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक बड़े माहिरों की पैनल बनाई। उससे पूछा, बताओ ये गुर्बत क्यों बढ़ती जा रही है उन मुल्कों में, डेवलपिंग वर्ल्ड में, और अमीर और गरीब मुल्क में फासले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो उन्होंने साल लगा के रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि हर साल हमारी तरह के, पाकिस्तान की तरह के मुल्क जिनके मुल्क में
रूल ऑफ लॉ नहीं है, ताकतवर को कानून के नीचे लाने की उनकी मोरालिटी, मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास वो इखलाकियात नहीं है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए उनके कानून के निजाम में उधर से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके, मनी लॉन्डर होके ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है और लंदन और बड़े बड़े शहरों के अंदर जाके प्रॉपर्टीज ली जाती है। ये उसकी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है। तो मतलब ये है कि जब ये सारे मुल्क, अगर इनके मुल्कों के अंदर इंसाफ का निजाम नहीं होगा, खुशहाली नहीं आएगी। वो जो मदीना की रियासत के अंदर उन्होंने असूल सेट किए थे, वो पहले तो खुशहाली नहीं थी। पहले 6 साल, अगर इन्होंने, खैर बड़ी, जब हम इसके ऊपर और भी फिल्में बनाएंगे, कि पहले 5-6 साल तो बहुत बुरे हालात थे मुसलमानों के, लेकिन उन्होंने पहले इंसाफ कायम किया, अखलाकियात उठाई सारे माशरे की, और उसके बाद उन्होंने फलाई रियासत बनाई, यानी पैसे नहीं भी थे लेकिन उन्होंने गरीबों को ऊपर उठाया, उनकी स्टेट ने जिम्मेदारी ली, उससे वो माशरा तक जुड़ गया। वो सब, जब मैं गरीब आदमी हूं, मुझे पता है कि अगर माशरा मेरी मदद कर रहा है और मुल्क मेरी मदद करता है, और मैं अगर ताकतवर मेरे से कोई जुल्म करे तो मैं अदालत में जाऊंगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा उस मुल्क के साथ। इस तरह उन्होंने उसको कौम बनाया। पहले तो कबीलों में बटे हुए थे, वो कैसे एकदम सुपर पावर बन गए? क्योंकि उन सारों को पता था कि ये जो रियासत है ये हमारी है। उन्होंने ओन किया कि हमें इंसाफ भी देती है, हमारी बुनियादी जरूरियात भी पूरी करती है, मेरिट है, यहां मैं मेहनत करूंगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। ये नहीं कि वहां सिर्फ चंद खानदानी ऊपर बैठे हुए हैं, जो मेहनत करेगा ऊपर आ जाएगा। कौम को आजाद कर दिया, और फिर और अपनी मिसाल से जो लीडरशिप उन्होंने खड़ी की, उनको शाहीन बना दिया। तो लीडर्स भी बन गए, कौम भी आजाद होगी, उस कौम फैल गई दुनिया पे। तो हमारा चैलेंज अब क्या है? हमारा चैलेंज ये है कि हमारे जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है इस मुल्क का, इसको हम सही तरफ लगाएं, इसका रास्ता हम सही करें। अक्सरियत इस मुल्क के नौजवानों की है, और मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। मैं वो एक खुशकिस्मत इंसान हूं जिसको कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं है। जो मैं चाहता था, जिस तरह की जो भी चीज है, अल्लाह ने तो मुझे सब कुछ दे दिया। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं पहली जनरेशन था इस मुल्क की, हमारे माँ बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। हम बचपन में सारी वक्त कहानियां सुनते थे, जो माँ बाप हमें बताते थे कि तुम्हें नहीं पता गुलामी क्या है, किस तरह अंग्रेज यहां हुकूमत करता था, किस तरह हमारी कोई हैसियत नहीं थी। तो हम बड़े हुए थे इस चीज सुन के, और फिर हमने अपने मुल्क को ऊपर जाते देखा। ये याद रखो, आज से 50 साल पहले पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, ये सारे खित्ते में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, और फिर हमने इसको नीचे आते देखा, और इसको हमने इधर। तो मेरी कोशिश एक है कि हम वापस एक वो मुल्क, जो एक बहुत बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान की, जिस मुल्क का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको किसने, उस मुल्क को याद रखिए, जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे, उनको तो पता था वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकते। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट दी, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने वो ख्वाब दिया पाकिस्तान का कि एक मिसाली इस्लामी रियासत बनेगी, मॉडल बनेगी सारे मुसलमानों के लिए। हमने वो नेशन बनना था, हमने वो मॉडल किया मुसलमानों का, वो मदीना की रियासत है। तो हमने तो, और फिर पाकिस्तान की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो क्या थी? इस्लामी फलाही रियासत, वो भी मदीना के। सो हमारा तो ऑब्जेक्टिव वो था। तो ये जो कादरी साहब ने भी बात की कि हमें जिस रास्ते पे 74 साल पहले चल जाना चाहिए था,
वो इंशाअल्लाह हम सफर अब शुरू करने लगे हैं। मुझे कादरी साहब ने कहा, मुझे कहते हैं कि मैं जब लोगों को कहता हूं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि मदीना की रियासत के तर्ज पर पाकिस्तान को बनाया जाए, तो कहते वो आगे से कहते हैं खुद तो सारे मजे कर गए, अब हमें लगा दिया मदीना की रियासत के ऊपर। मैंने कादरी साहब को कहा, मैंने कादरी साहब को कि हम एक वक्त ऐसा था, मुझे भी लोग कहते, हमारे बड़े कहते थे कि आप ये किस रास्ते पे लगे हुए हैं, ये गलत रास्ते पे हैं। तो मैं तब सोचता था, मैं इन्होंने क्या पता कि इस रास्ते में क्या है, इन्होंने तो देखा ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है। मुझे पता है, मैंने वो सारा रास्ता देखा हुआ है। मैंने सारी, जो लोग तसव्वुर करते हैं, ये जरा गौर से, मैं अपने नौजवानों को फिर से कह रहा हूं, गौर से जरा मेरी बात सुने। देखें, लोग सारी वक्त उम्मीद लगाते हैं, उनको ग्लैमर और ये और वो और फिल्म स्टार्स और एक्टर्स और पॉप स्टार्स की ये कोई बड़ा ग्लैमरस जमाना है और ये कोई ऐसी चीज है जो हम सारे कोशिश करते हैं। रोल मॉडल्स वो हैं, मेरे भी वही रोल मॉडल्स थे। हम जब HSC कॉलेज से निकले तो मुझे तो ये चीजें पता नहीं थी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुझे तो कोई मदीना की रियासत की सही माने में समझ ही नहीं थी। मुझे तो उनकी पूरी तरह जिंदगी के अंदाजा नहीं था। हमें ऐसे एक लगता ऐसे था, जब हम, तब तो बड़े थोड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, तो जब हम वहां से लेके लगता ऐसे था कि हमारा जो अपना कल्चर है वो भी पीछे है, हम बैकवर्ड हैं, सारा कुछ आगे है, टेक्नोलॉजी उधर है, वो मुल्क आगे निकल गए, जो वो कहते हैं वो ठीक है, और जो उनके रोल मॉडल्स है वो हमारे बन गए। तो हम उन रोल मॉडल्स के पीछे हम सब फॉलो करते रहे, और रोल मॉडल्स बदलते रहते हैं इंसान के। मैं पहले मेरे अपने 2 कजन्स थे, वो रोल मॉडल्स थे, क्रिकेटर्स थे दोनों। फिर जैसे जैसे आगे गया, फिर स्पोर्ट्समैन, फिर पॉप स्टार वगैरह। तो मुझे तो मौका मिला उस सारी जिंदगी को अंदर से देखने का। और मैं तो अपने तजर्बे से आज आपको कह रहा हूं कि जो इस वक्त हमारे यूथ के सामने चैलेंजेस हैं, अगर हमारे सामने चैलेंजेस थे तो आज यूथ के साल में तो, और सोशल मीडिया आ गया, वो तो बहुत बढ़ चुके हैं चैलेंजेस। और मैं इस नतीजे पे हूं कि हम जब तक वापस नहीं जाएंगे, वो जो हमें उन उसूलों के ऊपर नहीं जाएंगे, हमारा माशरा ऊपर नहीं आ सकता, बल्कि बड़े खतरे में है। तो मैं अब आपको सिर्फ ये अपनी जो बताता हूं कि हमारा मकसद क्या था ये रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाने का। इसका मकसद क्या था? इसका सबसे बड़ा मकसद फिर से यही है कि उनकी जिंदगी को, अपनी नौजवानों को, उनको हम तैयार करें, उनको समझाएं। देखें, एक चीज याद रख लें कि दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। अब दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अब आप किसी को जबरदस्ती दीन की तरफ नहीं ला सकते। अल्लाह ने कुरान में यह वाज़ेह कर दिया। हम रास्ता दिखा सकते हैं। हम एक माशरा अपने बच्चों को, 2 रास्ते के, आपके सामने 2 रास्ते हैं। नमाज में हम वो दो ही रास्ते हैं ना। हम अल्लाह को कहते हैं वो रास्ता दे जिस पे तूने नेमतें बख्शी, दूसरे रास्ते पे नहीं जिधर तबाही का रास्ता है। हम कम से कम अपने बच्चों को बता तो सकते हैं कि इस रास्ते पे चलोगे तो ये होगा, इस रास्ते पे चलोगे तो ये होगा। ये तो हम कर सकते हैं। बाकी फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सीधे रास्ते पे लगा दे। तो ये जो अथॉरिटी का मकसद ये है, इसमें जो गवर्नमेंट करेगी, मैं पहले अपना गवर्नमेंट बता दूं, जो हमारी कोशिश है। नंबर 1, मैं फिर से आपको कहता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग में लड़ूंगा, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ता रहूंगा। ये जो लोग अपने आप को इस मुल्क में कानून से ऊपर समझते हैं, वो समझते हैं कि वो जो मर्जी जुर्म करें, ये इस मुल्क का कानून उनको पकड़ना नहीं चाहिए या पकड़ नहीं सकता। वो जब तक हम उनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, आप कभी भी ये ना सोचें कि नीचे सरकारी नौकर, पटवारी और ये पैसे नहीं लेंगे। हमेशा ऊपर से माशरा ठीक होता है, जो मदीना की रियासत में हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर से माशरे को ठीक किया था। तो हमने ऊपर से ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है।
जो उनकी फिर से कि बड़ी कौमें बर्बाद हुई तुम्हारे से पहले, जैसे ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा था। कौम कभी भी सारी जितने ये गरीब मुल्क हैं, हर मुल्क का यही मसला है। हर गरीब मुल्क का मसला ये है कि उनकी एलीट ने पैसा सारा बाहर रखा हुआ है, उनके भी ऑफशोर अकाउंट्स हैं, उनके भी बड़े बड़े मगरबी कैपिटल्स में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये तो जंग लड़ेंगे। और दूसरा फलाई रियासत, वो इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरे हम लगे हुए हैं। मैं ये आजकल के जो मुश्किल दौर है, महंगाई है, बाहर से सारी कीमतें, कोरोना की वजह से इन्फ्लेशन आई हुई है, कीमतें महंगी हैं। हम अभी एहसास का प्रोग्राम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम नीचे 1.25 करोड़ खानदानों को हम उनको पैसे देंगे, खाने पीने की चीजों की, गंदम के, उनको हम सब्सिडाइज करेंगे इंशाल्लाह। अगले महीने से हम शुरू कर रहे हैं। फिर हमारा कामयाब पाकिस्तान आ रहा है, वो भी एक बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। कर्जे देंगे नौजवानों को सूद के बगैर। निचले इंशाल्लाह 1.25 करोड़ खानदानों को एक खानदान के अंदर पहले घर बनाने के लिए माइक्रो क्रेडिट देंगे। वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पैसे के लिए, ताकि वो अपने गरीब लोग अपने घर बना सकें। दूसरा, उनको सस्ते कर्जे देंगे, शहरों में अपनी दुकानें, देहातों के अंदर वो ज़राई चीजें खरीद सकें। और तीसरा, सबको पख्तूनख्वा में सबको हम हेल्थ कार्ड दे बैठे हैं। मार्च तक पंजाब में सब लोगों को हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे कि एक गरीब घराने के अंदर 10 लाख रुपया हर खानदान के पास हो, किसी भी अस्पताल में अपना जाके इलाज करवा सके। तो इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है। लेकिन जो अथॉरिटी करेगी, जो खतरा हमें है, वो खतरा सबसे ज्यादा अपने नौजवानों के, जो इस मुल्क में बड़ी तेजी से सेक्स क्राइम बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा खतरा है माशरे में। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने खुद देखा बरतानिया में। जब मैं शुरू में गया तो 14 के अंदर हर 14 शादियों में 1 तलाक होती थी। उस वक्त नया वहां शुरू हुआ था सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल। ये एक नया कल्चर शुरू हुआ था। फाशी आम हो गई वहां, पहले ऐसे नहीं होता था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने माशरे के अंदर जिस तरह फिल्में उनकी बदलनी शुरू हुई, टीवी के ऊपर आना शुरू हुआ, वो चीज जो पहले नहीं आती थी, उनके माशरे के अंदर सबसे पहले इंपैक्ट पड़ा शादी के ऊपर, खानदानी निजाम के ऊपर। और वो जब उनका खानदानी निजाम आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हुआ, तो तब हमें समझ आई कि आहिस्ता समझ आई कि क्यों ये पर्दे का कॉन्सेप्ट है। देखिए, पर्दे का इस्लाम के अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है कपड़ों का, ये एक इस्लाम में शादी को प्रोटेक्ट करने का कॉन्सेप्ट है। वो अब एक माशरे के ऊपर है कि इज्तिहाद करके डेवलप करें कि किस तरह हमने अपने खानदानी निजाम को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब मैं शुरू में गया था तो 14 में 1 तलाक थी, और जब आखिर में 70% तलाकें हो गई वहां, तो उनकी फैमिली सिस्टम टूटा। जब आप एक माशरे के अंदर फाशी बढ़ाते रहते हैं, इसलिए हमारे हजूर ने मना किया हुआ है। इसलिए मदीना की रियासत में भी जब शुरू में खानदानी निजाम टूटा हुआ था, उन्होंने उसको लेके आए दायरे के अंदर शादी की और प्रोटेक्ट की शादी। तो हमारे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजों में वो हमारे से आगे हैं, बाकी अखलाकियात में हमारे से आगे हैं। लेकिन हमें अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने खानदानों को बचाना है। वो जो कल्चर इस वक्त आ रहा है, जो इस वक्त मुल्क में हमारे नहीं, उधर से हॉलीवुड से जाता है बॉलीवुड से इधर आता है, ये कल्चर हमारे खानदानी निजाम को तबाह करेगा। हॉलीवुड के अंदर जिधर से कल्चर आ रहा है, 2.5 साल है एवरेज एक शादी की। एक शादी लास्ट 2.5 साल करती है वहां, क्योंकि वो कल्चर के असरात हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अथॉरिटी में हम अपने लोगों को, हमारे स्कॉलर्स आगाह करें, बताएं लोगों को कि इसका इंपैक्ट क्या है, क्या इसका इस मुल्क में इसका कितना इंपैक्ट पड़ा है उनके खानदानी निजाम से, हमारे खानदानी निजाम पे। तो जो सबसे बड़ा, और माँ बाप इस चीज को समझेंगे आज जो सुन रहे हैं, बच्चों के पास जो मोबाइल फोन है। अब देखिए, इंसानी तारीख में कभी भी बच्चों के पास एक ऐसी चीज मोबाइल फोन जिसके ऊपर हर किस्म की इंफॉर्मेशन है,
कभी इंसानी तारीख में उस तरह की इंफॉर्मेशन बच्चों के पास नहीं है। इसका तरीका हम कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम मोबाइल फोन नहीं ले सकते, हम सोशल मीडिया नहीं बंद कर सकते, और जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन हम कम से कम अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि ये जो कल्चर आपके सामने आ रहा है, इसके बड़े बुरे असरात होंगे आपके ऊपर, इसके ऊपर क्या असरात होंगे। तो ये अथॉरिटी का, तो मैं आप अथॉरिटी के ऊपर आता हूं। नंबर 1 चेयरमैन, हमारी जो चेयरमैन होंगे रहमतुल आलमीन एकेडमी के, वो एक स्कॉलर होंगे जिन्होंने सीरत के ऊपर किताबें लिखी होंगी, पेपर्स लिखे होंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा, उनके इंटरनेशनल कनेक्शंस होंगे, क्योंकि कोशिश ये होगी, और मैं अच्छे अभी स्कॉलर से मिला भी हूं, कोशिश ये होगी कि वो बड़ा जबरदस्त काम दुनिया में हो रहा है, बड़े बड़े स्कॉलर्स पाकिस्तान के बाहर जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये अथॉरिटी कोऑर्डिनेट करेगी दुनिया में हमारी जितने भी रिसर्च हो रही है, जो डेवलप कर रहे हैं हम इस्लामिक थिंकिंग और सीरत नबी, तो उन सारों को ये कोऑर्डिनेट करेगा चेयरमैन। नंबर 2 स्कूल्स के अंदर, हमने स्कूल्स के अंदर 8, 9 और 10 क्लास में एक सीरत नबी का एक कोर्स शुरू किया, और ये स्कूलों के अंदर मॉनिटर किया जाएगा। ये जरा गौर से सुन ले, देखें, कोशिश ये होगी कि ये एक स्कॉलर जो होगा, एक जो नंबर पहले चेयरमैन, उसके बाद जो दूसरा स्कॉलर, वो ये स्कूलों के अंदर मॉनिटर करेंगे कि ये जो सीरत पढ़ाई जा रही है इसके क्या असरात हैं, और टाइम के साथ करिकुलम चेंज करना है, क्योंकि बड़ी तेजी से सोच आगे बढ़ रही है, तो इसलिए वो मॉनिटर करेंगे। और उसके बाद एक तीसरा, मीडिया में एक स्कॉलर होंगे जो मीडिया को संभालेंगे। और मीडिया के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो बच्चों के अंदर जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है कार्टून से, जो कार्टून है वो बिल्कुल एक बच्चों को एक मुख्तलिफ कल्चर बता रहा होता है, उसके अंदर माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उसके अंदर बड़ों की इज्जत नहीं होती, वो बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर है। हमें अपने कल्चर के मुताबिक कार्टून्स बनाएंगे, बच्चों को एक ऑल्टरनेट बताएंगे कि वो हमारा कल्चर क्या है। तो वो सेकेंडली वो एक स्कूल्स में वो उनका काम होगा। और फिर जो मीडिया का जो मीडिया के स्कॉलर होंगे, उनका ये भी काम होगा कि मीडिया के अंदर अच्छे जो मजमून, सीरत के ऊपर मजमून लिखवाएं, मॉनिटर करें, प्रोग्राम्स करें टेलीविजन के ऊपर, वो प्रोग्राम्स हों जो कि एक जो हमारा कल्चर है वो सामने लेके आए, वो नहीं जो कि बाहर का कल्चर है। तो जिस तरह मैंने जाके प्रेसिडेंट अर्दोगान से रिक्वेस्ट करके ये जो अर्तुगुल प्ले, जो ये टीवी के ऊपर सीरियल है, वो लेके आया। वो इसलिए कि मैंने जब शुरू में बात की मीडिया के लोगों से और प्रोड्यूसर से, तो उन्होंने कहा कि यहां देखते ही नहीं कोई, अगर आप ये जो हिंदुस्तान का कंटेंट है उस तरह का नहीं लेके आया तो लोग देखते ही नहीं है। तो वो साबित करने के लिए वो प्ले लेके आया, वो जो सीरियल है, और वो एक उसमें बिल्कुल एक इस्लामिक कल्चर है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, उसमें रोमांस भी है, सब कुछ है, लेकिन दायरों के अंदर है। तो वो लोग देखते हैं, फैमिलीज बैठ के देखती हैं। मुझे इतनी कॉलें आई लोगों से कि जी हम फैमिली बैठ के, अब टीवी नहीं देख सकते, वहां इस तरह की चीजें हैं देहात के अंदर, खास तौर पे कंजर्वेटिव फैमिलीज है हमारी। तो इसलिए ये जो मीडिया के अंदर एक ऑल्टरनेटिव हम लोगों को चॉइसेस देंगे कि आप देख सकें, हम रोक तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हम उनको चॉइस देंगे। फिर एक इंटरनेशनल सेल इसमें होगा। अब होता क्या है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो जाती है। वो रिएक्शन क्या होता है कि हम आके अपने मुल्क में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, उससे फर्क कुछ नहीं, उनको तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। और होता क्या है कि वो बल्कि वहां वो और ज्यादा ये चीज इस्लामोफोबिया को आगे बढ़ाते हैं, कहते हुए कि देखिए जी यहां तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो लोग बड़े तंग नजर हैं। तो इसलिए ये जो होगा, ये हम स्कॉलर्स के साथ इंटरनेशनल, ये जो इंटरनेशनल सेल होगा, ये बाकियों से टाइप करके फिर एक बड़ा इंटेलेक्चुअल, एक सोच समझ के हमारा रिस्पांस जाएगा, जो कि यूएन को भी जाएगा, जो बड़े इदारों को भी जाएगा, ताकि वो सारों को पता चले
کہ اصل میں کیوں مسلمان شور مچاتا ہے. ان کو کیا پتا کہ ہم کتنا عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے. تو ہم کم از کم ان کو بتائیں, کوئی سوچ, ایک سیل بیٹھے جو کہ ان کی زبان میں, جو مغربی ان کی کلچر کی زبان میں ان کو ایکسپلین کر سکے, جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے. اور پھر یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروائیں گے. اب دیکھیں, کبھی کسی نے کبھی ریسرچ, میں نے تو نہیں پڑھی, کتنی دفعہ یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ جو فینومینا تھا کہ 624 جنگ بدر, 636, 624 میں 313, 636 11 سالوں کے بعد رومنز ہار جاتے ہیں یارمک میں, پورا یعنی سپر پاور, اور اگلے سال پرشیا دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں نہیں اس فینومینا کے اوپر ریسرچ ہوتی, کتابیں ہوتی, یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈبیٹس کیوں نہیں ہوتی؟ تو انشاءاللہ یہ, اور جیسی جیسی آپ ڈبیٹس کریں گے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا عروج کیوں تھا اور زوال کیوں ہے, اسی میں سمجھ آ جائے گی. اور پھر اسپیشل پروجیکٹس, ایک ہمارے اسکالر ہوں گے جو اسپیشل پروجیکٹس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہمارے بڑے دن ہے, مثلاً 12 ربیع الاول ہے, اس پہ ان کا کام ہوگا کہ لوگوں کو پھر سے یہ سیرت ایکسپلین کریں. ہم آ کے خوشیاں بنا کے چلے گئے ہیں, کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس انسان کے لیے ہم خوشیاں بنا رہے ہیں اس کی اپنے سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ یعنی اس کی جو اس نے ہمیں کہا ہوا اپنی امت کو کہ جس راستے پہ چلو, کیا ہم چلتے ہیں اس راستے پہ؟ تو وہ, اور پھر عرس ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہمارے صوفیہ جن کے بزرگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں, اتنے لوگ آتے ہیں, دھمال ہوتی ہے, سب ہوتا ہے, ڈانس کرتے ہیں لوگ, خوشیاں بناتے ہیں, چرس پیتے ہیں, اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. کسی نے ان کو بتایا کہ یہ کیوں آپ ان کی خوشیاں بنا رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے, بابا فرید کا کیا کلام تھا, وہ سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے یہ انسانیت کے لیے آئے تھے. ابھی آپ وہاں چلے جائیں سندھ کے اندر, تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب عرس ہوتے ہیں تو اس پہ ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سب انسانیت کے لیے تھے. اور یہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ رحمت العالمین کو, جو انسانیت کے لیے آئے تھے. تو سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والے تھے. یہ اسلام پیار کا دین تھا. یہ جب عرس پہ جب جائیں تو کم از کم اس سے پہلے ہم بتائیں تو صحیح کہ ہمارا دین تو پیار کا دین ہے. یہ تقسیم کرنا, کبھی بندوق کے نوک کے اوپر کرنا, یہ ہمارا دین نہیں ہے. تو اس لیے ایک اسپیشل پروجیکٹ ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ہو, جو کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجس فیسٹیولز ہوں اس کے پیچھے بتائیں تو صحیح کہ ہم کیوں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور لاسٹلی پھر اسکالرشپس. ہم نے ابھی تک رب العالمین کے رحمت العالمین کی نام پہ اسکالرشپس دیے, اور ان اسکالرشپس میں ایک پھر یہاں بیٹھ کے جو ہماری اتھارٹی میں ہوگا, اس کا کام یہ ہوگا کہ دیکھیں کہ کیا پہلے تو اسکالرشپس میرٹ پہ جا رہی ہیں, آن لائن پوری کمپلینٹس, جن اسکالرشپ جو بھی لیں گے ان کے کوئی بھی کمپلینٹس ہیں, مسئلے آ رہے ہیں, کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو قابل لوگ ہوں گے, پڑھ رہے ہیں, یعنی کسی سبجیکٹ میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں, وہ یہاں آن لائن ہمیں کانٹیکٹ کریں گے. مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہم سروس کریں گے قابل لوگوں کو رحمت للعالمین اسکالرشپس کے نام پہ, تاکہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکیں. ادھر سے وہ کریں گے, ادھر سے سارا سینٹرلائز ڈیٹا بیس اس کا بنے گا, اور انشاءاللہ یہ پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے. میں آخر میں میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میری کوشش یہ ہے کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا, اس کو یہ جو اللہ نے اتنا عظیم ملک دیا ہے اور ان لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے, سب کچھ دیا ہے, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح وہ یہ چلیں, اور رول ماڈلز تو ہوتے ہیں, رول ماڈلز تو ہر انسان کے ہوتے ہیں, لیکن ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے.
اور ہم پوری طرح ہماری گورنمنٹ پوری مدد کرے ان کو پورا آگاہ کرنے کے لیے کہ ان کی وہ کیا وجہ تھی، ان کے اندر کیا صفتیں تھیں کہ دنیا میں نہ کبھی ایسا انسان آیا اور نہ آ سکتا ہے، اور جس کو اللہ نے اپنا حبیب مانا، وہ سارے میرے نوجوانوں کو سب کو پتہ چل جائے، تاکہ وہ پھر ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی ہمارا نوجوان انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم ملک بنا دے گا. شکریہ. ناظرین، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مرکزی تقریب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہو رہی تھی، جس سے براہ راست مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان